students for the video lecture of subject Water Resources Engineering. So in today's lecture we will see topic 5.3, that is diversion headwork, its layouts and components. Myself Rushali Mane, lecturer in Civil Department of Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. So vision of the institute: excellence in technical education to empower youth. Mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, then develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens, strengthen industry institute interaction. Then vision of the department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission: imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability. Then to develop social and environmental responsible civil engineers. Then effective implementation of teaching learning process to benefit students. Then course outcome. So course outcome is to select the relevant diversion headwork for the specific site conditions. तो जो भी साइट कंडीशन रहेगी उसमें हम कौन सा डाइवर्जन हेडवर्क यूज़ करेंगे, जैसे वियर हो गया, बराज हो गया, तो वो हम यहाँ से हमारा ये कोर्स आउटकम है. देन यूनिट आउटकम, तो इस टॉपिक से हम वी कैन ड्रॉ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क, वियर एंड बराज इन द गिवन सिचुएशन. We can prepare a checklist for maintenance of the diversion headwork, weir and barrage in the given situation. We can draw a labeled sketch of given type of diversion headwork, weir and barrage. Then program outcome mapped here are basic and discipline knowledge. फिर जो भी डिज़ाइन और डेवलपमेंट कर पाएंगे हम, जहाँ पर वाटर पहुँचता नहीं है उसके लिए हमको ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन. देन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और वाटर फार्म तक पहुंचने के लिए, क्रॉप्स को वाटर पहुंचने के लिए, इरिगेशन के लिए हम ये टॉपिक का यूज़ कर सकते हैं. और लाइफ लॉन्ग लर्निंग. देन डाइवर्जन हेडवर्क. तो डाइवर्जन हेडवर्क क्या होता है कि एक इरिगेशन कैनाल सप्लाई लेता है रिवर से, तो पानी को जो है डाइवर्ट करने के लिए कैनाल में नेसेसरी होता है एक ऐसा हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करें अक्रॉस द रिवर जिसके हेड पे होगा कैनाल, और उस कैनाल में ये डाइवर्जन हेडवर्क कंस्ट्रक्ट करके वाटर हम उस कैनाल के थ्रू पास कर सकते हैं. तो डाइवर्जन हेडवर्क क्या है? एन इरिगेशन कैनाल टेक्स इट सप्लाई फ्रॉम अ रिवर और अ स्ट्रीम. So in order to divert water from the river into canal, it is necessary to construct certain works or structure across the river and at the head of the off-taking canal. These works are known as diversion headworks or headworks. मतलब water को इस headwork के through canal में pass किया जाता है. That is called as headwork. तो it is a structure from which water is diverted to the canal. Then purpose of diversion headwork. Purpose is it raises the water level in the river so that the command area can be increased. It regulates the intake of water into the canal. It controls the silt entry into the canal. It reduces fluctuations in the level of supply in the river. It stores water for tiding or small period of short supplies. Then location of diversion headwork. तो साइट जो है शुड गिव मोस्ट इकोनॉमिकल अरेंजमेंट, जो भी साइट हम सिलेक्ट करेंगे, और वाटर जो है वो इकोनॉमिकली डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स में हम सप्लाई कर पाएंगे. देन रिवर सेक्शन जो है वो नैरो और वेल डिफाइंड होना चाहिए. देन रिवर शुड हैव हाई वेल डिफाइंड इन इरोडेबल एंड नॉन सबमर्सिबल बैंक्स. मतलब जो बैंक्स है वो नॉन इरोडेबल होनी चाहिए, नॉन सबमर्सिबल होनी चाहिए, सो दैट कॉस्ट ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स इज मिनिमम. रिवर ट्रेनिंग वर्क जो है वो मिनिमम हो जाएगा इसकी वजह से. द कैनाल टेकिंग ऑफ फ्रॉम द डाइवर्जन हेडवर्क शुड बी क्वाइट इकोनॉमिकल एंड शुड हैव ए लार्ज कमांड एरिया. तो जो भी कैनाल है वो लार्ज कमांड एरिया इरिगेट करते आना चाहिए. देन देयर शुड बी सूटेबल अरेंजमेंट फॉर द डाइवर्जन ऑफ रिवर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन के वक्त रिवर को एक प्रॉपर डाइवर्जन का अरेंजमेंट प्रोवाइड हो जाना चाहिए. देन साइड शुड बी सच दैट द वियर कैन बी अलाइंड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द रिवर. तो वियर जो होता है ये डाइवर्जन हेडवर्क एक राइट एंगल पे प्रोवाइड हो जाना चाहिए. देन देयर शुड बी सुटेबल लोकेशन फॉर द अंडर स्लूइसेस
हेड रेगुलेटर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। मतलब लोकेशन ऐसा सिलेक्ट करना है कि उसके कंपोनेंट्स जो है वो प्रॉपर सूटेबल लोकेशंस में आने चाहिए। देन लोकेशन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क अगेन, द डाइवर्जन हेडवर्क शुड नॉट सबमर्ज कॉस्टली लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑन इट्स अपस्ट्रीम। मतलब कॉस्टली लैंड और अपस्ट्रीम में जो भी सबमर्ज नहीं होना चाहिए और कॉस्टली लैंड अवॉइड करना है। देन गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल एट द साइट, जो भी साइट है वहाँ पे गुड फाउंडेशन होना चाहिए। द रिक्वायर्ड मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी अवेलेबल नियर द साइट। मतलब उसमें कॉस्ट बचाने हैं, मटेरियल कहीं और से नहीं लाना है, नियर बाय जो मटेरियल अवेलेबल है उसी से हमको ये डाइवर्जन हेडवर्क बनाना है। द साइट शुड बी इजीली एसेसिबल बाय रोड और रेल। मतलब कहीं से भी पहुंचा जा सकना चाहिए उस साइट तक। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी मिनिमम। द लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क, तो लेआउट देखिए आप डाइवर्जन हेडवर्क में क्या क्या है। सिल्ट एक्सक्लूडर, वियर देखो एक वियर है, रिवर इसे पास हो रही है, एक वियर और बराज कंस्ट्रक्ट किया है, उस वियर और बराज में फिश लैडर है, डिवाइड वॉल है, देन अंडर स्लुइसेस है, कैनाल देखो कैनाल है, हेड रेगुलेटर्स है, सिल्ट एक्सक्लूडर है, मार्जिनल बंड्स है दोनों साइड में, गाइड बैंक्स है, देखो दोनों साइड से गाइड बैंक्स। तो ये होता है लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। देन कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। वियर और बैराज होता है उसमें, अंडर स्लुइसेस, डिवाइड वॉल, फिश लैडर, कैनाल हेड रेगुलेटर, पॉकेट और अप्रोच चैनल, सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट प्रिवेंशन डिवाइसेस एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, जिसमें मार्जिनल बंड या गाइड बैंक्स होते हैं। देन कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स एंड देयर फंक्शंस। तो अंडर स्लुइसेस क्या है। अंडर स्लुइसेस सेक्शंस आर प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू द कैनाल हेड रेगुलेटर। द अंडर स्लुइसेस शुड एबल टू पास फेयर वेदर फ्लो फॉर विच द क्रेस्ट शटर्स ऑन द वियर प्रॉपर नीड नॉट बी ड्रॉप्ड। मतलब अंडर स्लुइसेस ऐसे होने चाहिए कि फेयर वेदर फ्लो उसमें से पास होना चाहिए। देन द क्रेस्ट लेवल ऑफ अंडर स्लुइसेस इज जनरली केप्ट एट द एवरेज बेड लेवल ऑफ द रिवर। तो क्रेस्ट लेवल जो है वो एवरेज बेड लेवल तक होना चाहिए। देन डिवाइड वॉल, द डिवाइड वॉल इज अ वॉल कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर टू सेपरेट द वियर सेक्शन एंड द अंडर स्लुइसेस सेक्शन टू अवॉइड क्रॉस फ्लोज। तो अंडर स्लुइसेस सेक्शन और वियर सेक्शन को अलग अलग रखने के लिए डिवाइड वॉल होती है, क्रॉस फ्लो अवॉइड करने के लिए। देन इफ देयर आर अंडर स्लुइसेस एट बोथ द साइड्स देयर आर 2 डिवाइड वॉल्स। अगर अंडर स्लुइसेस दोनों साइड में है मतलब फिर 2 डिवाइड वॉल होगी दोनों साइड में। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज फिश लैडर। फिश लैडर इज ए पैसेज प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू द डिवाइड वॉल ऑन द वियर साइड फॉर द फिश टू ट्रैवल फ्रॉम द अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम एंड वाइस वर्सा। मतलब फिश लैडर से फिश जो है वो एडजेसेंट है डिवाइड वॉल से, तो फिश जो है वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम पास कर सकती है। देन फिश माइग्रेट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑफ द रिवर इन सर्च ऑफ फूड और टू रीच देयर स्प्रॉलिंग प्लेसेस। देन इन अ फिश लैडर द हेड इज ग्रेजुअली डिसिपेटेड सो एज टू प्रोवाइड स्मूथ फ्लो एट सफिशिएंट लो वेलोसिटी। तो फिश लैडर जो है वो ग्रेजुअली डिसिपेट होता है जिससे फिश जो है वो स्मूथली लो वेलोसिटी से पानी जो है उससे लो वेलोसिटी से पास हो सके। देन सुटेबल बैफल्स आर प्रोवाइडेड इन द फिश पैसेज टू रिड्यूस द फ्लो वेलोसिटी। बैफल वॉल्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है, एक तो हॉरिजॉन्टल बैफल वॉल्स या फिर वर्टिकल बैफल वॉल्स। देन नेक्स्ट है कैनाल हेड रेगुलेटर। इट इज प्रोवाइडेड एट द हेड ऑफ द कैनाल ऑफ टेकिंग फ्रॉम डाइवर्जन हेडवर्क्स। कैनाल के हेड पे प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल जहाँ से कैनाल शुरू हो रहा है वहाँ पे डाइवर्जन हेडवर्क प्रोवाइड किया जाता है, कैनाल हेड रेगुलेटर। इट रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ वाटर इनटू द कैनाल, कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ रिवर फ्लड्स इनटू द कैनाल। देन सिल्ट एक्सक्लूडर, it is a structure in the under sluice pocket to pass the silt laden water to the downstream so that only clear water enter into the canal through head regulator। तो ये सिल्ट एक्सक्लूडर जो है तो सिल्ट को जो है डाउनस्ट्रीम एरिया में पास कर देता है, ओनली क्लियर वाटर कैनाल में जाएगा थ्रू हेड रेगुलेटर।
The bottom layer of water which are slightly charged with silt pass down the silt excluder and escape through the under sluices. Then guide banks and marginal bunds या river training works होता है ये. Guide banks are provided on either side of diversion headwork for a smooth approach and to prevent the river from outflanking. Then marginal bunds are provided on either side of river upstream of diversion headwork to protect the land and property which is likely to be submerged during ponding of water in the flood. तो marginal bund जो है दोनों साइड में प्रोवाइड है ताकि एक प्रॉपर्टी और लैंड जो है वो प्रोटेक्ट हो सके ड्यूरिंग फ्लड्स. Then river training works. It defined as the various measure adopted on the river to stabilize the river channel along a certain cross section for a particular alignment. Then these measures are adopted because the river is alluvial plain frequently after their courses and subsequently cause damage to the land and property adjacent to them. Then settling basin. Removal of sediment from flowing canal by reducing flow velocity through a long expansion. It reduces flow velocity, shear, turbulence which stops sediment movement and also deposition of suspended sediment. Material from the bed of the basin suitably removed and disposed of. Then difference between diversion headwork and storage headwork. So we will see diversion headwork क्या होता है. उसमें weir और barrage is constructed to raise water level to divert the water to canal. Storage क्या होता है. Dam is constructed across the river valley to form storage reservoir. Then diversion headwork, water is supplied to the canal from this reservoir through canal regulator. और storage में flow of water in the canal is controlled by canal head regulator. Then diversion headwork, they rise the water level at the head of the canal. Then storage headworks, they serve for multi-purpose function like hydroelectric power generation, food control, fishery, etc. Then they control the entry of silt into the canal and deposition of silt at the head of the canal. So these are the factors which justify the difference between diversion headwork and storage headwork. So summary. In this topic today we have seen what is diversion headwork, site selection, layout, location, components, difference between diversion headwork and storage headworks. Then assignment question, list the components of diversion headwork, state the importance of fish ladder, draw a layout of diversion headworks and name important components. So this was about today's lecture. Thank you.